I would like to welcome, and guys, ladies and gentlemen, can you all put your hands together and welcome the one and only Anshuman Khaitan. Anshuman, hi Meenakshi. आ जाओ. जाना नहीं तू कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के रुक जाना नहीं तू कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के ओ राही ओ राही ओ राही. Sir, I don't know what you're doing, but that I'll leave it to you. no sir, 1 minute, stay right there sir. Tell me. सर ये जो आप बार बार मुझे वेलकम करते हो ना, एक्चुअली सर ये लोग मेरा अस्तित्व है. Very These nice. 8 people are representing 80 people of my factory. I was only a conduit to your cause. These are the guys who have implemented everything. सारा श्रेय हर बार इन्हीं को मिलना चाहिए सर. Very good. Awesome. सर ये शाहरुख खान है सर, हम सिर्फ डांसर पीछे में हैं. हम सिर्फ आके बाबा उठते हैं, असली काम ये लोग करते हैं. Very Seriously good. sir. These Excellent. guys are my superheroes. Good, Ji, good. Awesome. Thank you sir. Thank you. Thank you everyone. Thank you, thank you. ये आपका MDO है. नहीं सर, सर ये मेरा ड्राइवर डिम्पल है. ये अनिल है जो मीनू का EA है. मीनू मेरी EA है, so called, and he is the EA of the EA. He is also doing the PC work. He is my quality in charge. He is my security guard. He is now my civil engineer, but he had just joined as a DEO. Then he looked MIS, after purchases. He looked after MIS. He's aware of everything. All these guys can all multitask, and they don't know how to speak in English. Very good, Ji. Welcome. How you? Good, good, good. कैसे हो? जैसा आप रखना चाहते हो वैसे. Really, I'm telling you. खुश और खुश. चलो. अब आप स्टेज संभाल. Thank you, Ji. Thank you. So When I said yours. everything, I meant making my life and my family's. So, hi everyone, my name is Anshuman Khaitan. We own 2 schools in Noida और मेरी एक सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट रामपुर है, रामपुर फर्टिलाइजर्स के नाम से. मैं और मेरे भाई ने ये कोर्स एक साथ किया था. 2019 फरवरी में हम ग्रेजुएट किए. उस टाइम 8 महीने का कोर्स था, तो हम यहीं फ्रंट रो में बैठ के पूरे 32 क्लासेस अटेंड किए. It was a mind-blowing experience. Sir, before I go ahead, I want to share a picture of my bestest friends whom I have made because of this course over here. सचिन, ये मिर्ज़ापुर 3 लॉन्च हुई थी, तो यहाँ विशाल मल्होत्रा है, गौरव मल्होत्रा है, सुमीत खन्ना, सौरभ खन्ना. I have myself, Piyush Tatia is right here, Rajneesh Grover, Vikas Garodia. Most of these guys are here today also. And so only because of you, I managed to make my best friends out of this course. And I'm so happy that most of these people are here today. Let me clarify everyone. एक मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बात करूंगा. कोशिश ये करूंगा कि हिंदी में ज़्यादा करूं. दिल से आवाज़ ज़्यादा निकलती है, अंग्रेज़ी में ना निकलती. Let me clarify, मैं यहाँ सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आया हूँ. So everything that I'm going to say is 100% from my experience. I have come here to share my joy and happiness with all of you. ये जो प्रॉफिट डबलिंग है, ऑटो पायलट है, ये सारी चीज़ें आई एम टेलिंग यू इनकॉन्सिक्वेंशियल है. ये तो ऐसे ही हो जाएगी. प्रॉफिट क्वाड्रिपल भी हो जाएगी आप लोगों की, बट आप लोगों की लाइफ में इतना मज़ा आएगा, आप भरपूर तरीके से ज़िंदगी जी पाएंगे, पूरी तरह से रिलैक्स कर पाएंगे, एंड you are going to have a blast if you implement this course, because everything in your life is going to run smoothly because you are going to run smoothly. I will explain to you कि मैंने ये कोर्स के पहले मेरी ज़िंदगी क्या थी, कोर्स को मैंने कैसे इम्प्लीमेंट किया, और कोर्स को इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या क्या चेंजेस आए. मैं 19 अप्रैल 2018 में पहली बार आरजे सर का 1 डे कोर्स अटेंड किया था. मेरी ज़िंदगी बिल्कुल झंड थी, 180 डिग्री टर्न ली उसके बाद, बट मैंने वो किया जो आरजे सर ने बोला बिना अपने दिमाग को लगाए.
I was running a chemical plant, which was a really mundane, uninteresting, boring and silly business. 23 साल की उम्र में मैंने अपने प्लांट को रीस्टार्ट किया, करोड़ों रुपए के डेट से मैंने प्लांट को निकाला, बहुत सक्सेसफुल बनाया, 2003 की बात है। एंड उसके बाद मेरा पेट भर गया, अच्छा करने लगा, सो आई लॉस्ट इंटरेस्ट इन बिजनेस एंड स्टार्टेड रियली जस्ट पार्टिंग एंड एंजॉइंग माई सेल्फ। कोई मोटिवेशन नहीं था काम करने के लिए, रिसोर्सेज वर नेवर अ प्रॉब्लम। एंड व्हेन आई लुक बैक टुडे, मेरी जिंदगी पूरी तरह से स्टैग्नेट हो चुकी थी और एक हेविली कंजम्पटिव लाइफ थी। I just wanted to be a national level golfer, and I was pursuing my hobbies, partying, holidaying, and running away from my responsibilities. This is Anshuman Khaitan for you, sirs, until 2018. 2018, yes. Come on. I was only with celebrities. I was just enjoying myself, having a blast. Thank you, Sachin. I used to visit my factory once in 45 days for one day. और आज भी मैं 45 दिन में एक ही बार अपने फैक्ट्री जाता हूँ। बट वो अंशुमन और आज के अंशुमन, उस रामपुर और आज के रामपुर में बहुत बड़ा फर्क है, जो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। मेरी प्लांट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस प्लांट है, 120 टन सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, मगर हमारे पास सिर्फ 5 दिन का फिनिश प्रोडक्ट स्टोरेज था। कंटिन्यूअस प्रोसेस प्लांट होने के वजह से हम लोगों के पास जब भी रॉ मटेरियल कम हो जाता था या हमसे माल नहीं बिक रहा होता था, तो हम प्लांट को कम प्रोडक्शन में ले लेते थे, क्योंकि कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस जैसे तैसे चलाने का मन था इस प्लांट को। पूरा का देयर वाज कंप्लीट मेहम इन द प्लांट, पूरा का पूरा प्लांट जुगाड़ पे चल रहा था, टू द एक्सटेंड कि जिस वक्त मैं ये BCI लॉन्च करने के लिए गया समवेयर इन अगस्त 2018, तो मेरे जो जनरल मैनेजर थे मिस्टर बोस, गॉड ब्लेस हिज सोल नाउ, ही टोल्ड मी वेरी क्लियरली, ही सेड खैतान साहब मुझे एक बात बताइए, कौन है ये राहुल जैन? किसने सुना है BCI? छोड़िए साहब, हम ये प्लांट को जुगाड़ पे चला तो रहे, आपको क्या फर्क पड़ता है, आप एंजॉय करिए। Anyone could purchase anything sitting anywhere in रामपुर। जो इंडेंट होते थे परचेज वाले के डेस्क में 3-3, 4-4 महीने तक पड़े रहते थे, और सारे परचेजेस इमरजेंट परचेजेस थे। HR का कोई सिस्टम नहीं था, GM को कोई आइडिया नहीं था कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कब आ रहा है, कब जा रहा है, कौन सा गवर्नमेंट का आदमी आया, क्या किया हमने उसके साथ, नो आइडिया। और मेरे को तो बिल्कुल ही आइडिया नहीं था कि क्या चल रहा है HR में। डिस्पैच करते वक्त डिस्पैच लेबर वाज रिस्पॉन्सिबल कि आज कितना टन सल्फ्यूरिक एसिड किसको दिया जाएगा, एंड इट ऑल डिपेंडेड ऑन कौन सी पार्टी ज़्यादा डाला दे रही है उसको। देयर वाज लिटरली नो लेबोरेटरी, और हमारे जो GM साहब हैं, उनके जो पियोन थे, उनको उन्होंने सिखा दिया था राहुल को कि कैसे टेस्टिंग करना है, तो वही लेबोरेटरी इंचार्ज के जैसे काम कर रहा था। सारे पेमेंट्स रिलीज होते थे, अकाउंट्स ऑफिसर के पाम में जो जितना पैसा रख दिया उसने उसका पेमेंट रिलीज कर दिया, और सारे पेमेंट रिलीज होते थे जब खैतान साहब, अंशुमन खैतान दिल्ली में बैठ के बोला ओके रिलीज द पेमेंट, यू नो। आई रिमेंबर इन द मिडल ऑफ द नाइट, वन नाइट मैं किसी के पार्टी में था, दिवाली का समय था, और उसका फ़ोन आया मेरे पास, मेरे फैक्ट्री नंबर 1 का, कि साहब हमारे यहाँ डीजल ख़त्म हो गई, पूरा फैक्ट्री अंधकार में छा गया है। तो उसने अपना गाड़ी खोला, गया, 20,000 रुपये बोरो किए या क्रेडिट मिला, आई डोंट रिमेंबर, 2 बड़े बड़े कैन डीजल के उसने रखवाए, और उसमें वो डीजल भर के ही गॉट इट टू द फैक्ट्री एंड रीस्टार्टेड द प्लांट। दैट वाज द कंडीशन, द एंटायर एफर्ट वाज जस्ट टू कीप द प्लांट रनिंग अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। प्लांट में हमने कभी पेंटिंग नहीं कराई थी, रंधा मार के रेड ऑक्साइड लगा के हमने प्लांट को चलाया था। ऐसे ही हम 20 साल तक चला रहे थे पूरे फैक्ट्री को। कितने लोग रिलेट कर पा रहे जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ उनसे, है ना साहब? ये तो बहुत कम लोगों ने, अभी जिंदगी में तो सबकी वाट लगी हुई है, इसलिए तो हम यहाँ बैठे हैं। यहाँ पे हमारी भी लगी हुई थी बहुत बुरी तरह से। द रिलेशनशिप विथ माई स्टाफ वॉज दैट ये काम चोर है और इनको लगता था खैतान साहब चोर है, यही रिलेशनशिप था इनके साथ। फिर मेरे भाई ने मुझे पुश किया 2018 अप्रैल में राहुल जी का कोर्स अटेंड करने के लिए, एंड 19 अप्रैल 2018 he and me attended his one day. At the cost of repeating, I'm going to tell you one thing for sure, guys. Autopilot, doubling your profits, quadrupling your profits, becoming a big businessman is just a byproduct of this course. The real thing about this course is it's going to change you. आप बदल जाएंगे as a human being. तो आपका पूरा नजरिया बदल जाएगा
बिजनेस के प्रति, पेरेंट्स के प्रति, एम्प्लॉयज के प्रति, पैसे के प्रति आपका रिलेशनशिप आपके पैसों के साथ पूरी तरह से बदल जाएगा। और जो लव और अप्रिसिएशन आपको सब जगह से मिलेगी, स्पेशली आपके घर के स्टाफ से भी, आप सोच नहीं सकते हो किस तरह से आपकी लाइफ बदलेगी। Last but not least, which is I think the most important for me, when we were all bachelors or spinsters, when we were not married, इतने सारे हमारे इंटरेस्ट और हॉबीज थे। किसी को नेशनल लेवल स्विमर बनना था, किसी को स्क्वाश चैंपियन, किसी को बेकरी खोलना था, किसी को पार्लर खोलना था। शादी के बाद वो सब चीज़ें चली गई क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। सारे लोग अपने पराठे हमारे तवे पे सेकने लगे। अब तो हम तवा भी नहीं है, कोयला बन के रह गए। तो बॉस, ये कोर्स अगर आप कर लोगे ना, आपको आपकी ज़िंदगी वापस आपके ग्रिप में मिल जाएगी। और क्योंकि हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है इतने सालों का कि क्या नहीं करना है, हमारे हॉबीज़ और इंटरेस्ट 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगे। धंधे में तो मज़ा आ जाएगा क्योंकि हमें धंधा करना ही नहीं है, धंधा तो ये लोग करेंगे। हम ऐश करेंगे और अपने सारी जीवन में सारे इंटरेस्ट को जिएंगे। एंड दैट्स the main reason why you should be doing this course. If you think autopilot and doubling your profits you want to do this course, sir, don't do it. वो तो by product है, I promise you वो by product है, and I stand true to my word. You can take my number, you can kill me if you don't get what you're going to get from this course. I have attended sir's 4-month, 4-day का कोर्स मैंने अटेंड किया है उनका, 8 महीने का कोर्स किया है। उस टाइम हमारा 8 महीने का होता था, अब शायद 9 महीने का है। और मैंने 10 बारी उनके मैनिफेस्टेशन के क्लासेस अटेंड किए हैं। अब मैं आप लोगों से थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ, मैंने जो चीज़ें इम्प्लीमेंट की हैं पिछले 6 सालों में। बहुत ज़्यादा बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना गाइस? नहीं, सब इतने सुन बैठे हैं, एक बार जोरदार ताली बजा दो, नहीं तो मैं चला जाऊंगा यार। थैंक्स। मैं अपने फैक्ट्री अक्टूबर 2018 से लेके दिसंबर 2023 तक संडे से फ्राइडे तक रहा। फैक्ट्री को चलाने के लिए नहीं, अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए। वो बात मैं आपको बताऊंगा क्या क्या हुआ। मैंने 34 नए लोग इनिशियली हायर किए। जिस दिन मैंने सर का 8 महीना चालू किया, विद इन 8 months आई हायर्ड 34 न्यू पीपल for a sulfuric acid plant which cannot be expanded, and today there are only 10 or 12 of those 34 people who have come, who are still there, because system जैसे जैसे evolve होती गई, आदमी मल्टीटास्किंग करता गया और अपने आप वहाँ पे छटनी हो गई लोगों की। मैंने 32 पार्टीज दिए जिसमें मैंने लाइव सिंगर बुलाए, मैंने टेंटेज किया, केटरिंग किया और मैंने डीजे भी रखा। सुबह 4 बजे तक पार्टियां चलती थी, लड़के लोग लड़ाई भी कर लेते थे। एक लड़ाई में मैं भी इन्वॉल्व था, फिर सब गुस्सा हो गए तो मैं निकल गया वहाँ से। मैंने अपना रॉ मटेरियल स्टोरेज स्पेस 48% से बढ़ाया और अपना फिनिश स्टोरेज स्पेस 315% से बढ़ाया। आई नेवर पेड हीड टू प्रॉफिट्स और टू anything else except for implementation of what sir said. I have taken each and every word जो सर ने बोला as gospel truth. सर हरदम बोलते थे, अपना दिमाग घर पर छोड़कर आइए और मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए क्योंकि आपके पास ब्रेन्स है ही नहीं। और मैंने सिर्फ सर का यही फंडा लास्ट 6 years में फॉलो किया है। मेरे पूरे 25 लोगों के स्टाफ को मैं 2 बार मैनिफेस्टेशन के क्लास के लिए लाया, 2019 में और 2022 में राहुल सर के, और इनको मैं इरोस होटल में भी ठहराया। मैंने कहा सोचो एक दिन तो जी के देखो करोड़पति कैसे जीता है, क्योंकि तुम अगर लाखों कमाने की अपेक्षा रखोगे तो मैं तो अरबपति ऐसे ही बन जाऊंगा। सो दीज आर सम ऑफ द लेसन्स व्हिच आई लर्न फ्रॉम सर, यू नो। द ओनली थिंग इज, थैंक्स गाइस, the only thing is that I started treating my people with a lot of respect, love, honor, pride, क्योंकि वो भी हार्ड मास के इंसान हैं जैसे मैं हूँ। उनकी अंदर भी वही अपेक्षाएं जो मेरे अंदर हैं। उन्हें भी उन्हीं चीज़ों से भय लगता है जिनसे मुझे भय लगता है, और उन्हें भी वही चीज़ चाहिए जो मुझे चाहिए। So I started treating them like spiritual beings because we are all spiritual beings having an earthly experience. So once I started doing that, then everything changed for me. सर मैंने कहा ना, मुझे लगता था कि मेरे लोग काम चोर है और उन्हें लगता था खैतान साहब चोर है, क्योंकि कैलकुलेशन तो सब जानते हैं, जैसे हम आपकी प्रॉफिट भी कैलकुलेट करते रहते हैं। सारे बैठ के यही करते हैं।
फुल टाइम हमारी बात यही होती है, राहुल जी कितना कमा रहे हैं. I have 92 checklists and FMSs up and running. Sir, do you want us to show some of the FMSs and checklists? या आप लोग सारे यहाँ आ जाओ ना, रामपुर वाले, तो आप लोग अपने अपने दिखा सकते हो. We want a mic, Shaik and all. हेलो हेलो हेलो, ये है ना? आइए पकड़िए. ये हैंड माइक, whatever यार. हेलो हेलो हेलो. मुझे 3 साल हो गए कोई भी एफएमएस या चेकलिस्ट देखे हुए. ये बना लेते हैं, 10 मिनट में देख लेता हूँ, थोड़ी अंग्रेजी के शब्द ठीक कर लेता हूँ, बाकी यही खुद छापते रहते. तो व्हेन आई स्टॉप्ड वाज व्हेन देयर वर 55 एफएमएसएस एंड चेकलिस्ट. नाउ दे हैव 92 एंड दे आर मैनेजिंग एवरीथिंग. सर कौन सा चेकलिस्ट दिखाना था? चेकलिस्ट कौन सा दिखाना? मास्टर खोल लो. इंडेक्स खोलना सर. इंडेक्स खोलो. So everybody will later on make an index of all your systems. This is the index of all your systems because थोड़ी देर बाद आपके पास इतने systems होंगे कि आप lost हो जाओगे. तो ये index होता है of all the systems. So शुरू में सचिन अकाउंट से शुरू करो. अकाउंट छोड़ दो, गनमैन की दिखा दो. मैं आपको वो नॉर्मल दिखाता हूँ. नॉर्मल कैसे कैसे होता है, हर चीज को चेकलिस्ट पे कैसे डाल सकते हैं, कैसे हो सकता है. जी जय हिंद सर. जय हिंद जी. तो अकाउंट्स जो हमारे गनमैन होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, स्मॉल थिंग्स टू बिग थिंग्स. सिक्योरिटी गार्ड होता है, रात को सो जाता है, हर जगह जाता नहीं है, हर रात सोता रहता है, चाहे घर पे हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे फैक्ट्री में हो. यस? नहीं, नो सर. वेरी नाइस, आई लव दैट. हाँ जी, आप बताओ ये सिस्टम कैसे चलता है. ये आपका एक उसमें गनमैन राउंड में 6 राउंड होते हैं सर, और एक राउंड के 7 स्टेप होते हैं. एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर जो 5 से 10 मिनट का टाइम होता है, और उसे सबसे पहले जगह का सेलेक्ट करते हैं जो हमारे एफ में दिया हुआ होता है. उसके बाद जगह का सेलेक्ट करते हैं, फ़ोटो क्लिक करते हैं. उसके बाद जो है फोटो दिखा सकते हैं जी. सचिन? हर जगह जाके फोटो दिखाते हैं, जी, फोटो जो- क्लिक करते हैं. जी जी इस पे टाइम स्टैम्प है? जी. हाँ, क्योंकि क्या हो सकता है, नहीं तो आपके फोटो बार बार सेम फोटो हो सकती है. तो नीचे टाइम स्टैम्प लिखा है, ये दिख रहे हो? हाँ सर, आ रहा है. 25/11/2024 को 8:29 पे ये फोटो ली गई है. तो वो फोटो बाय डिफॉल्ट आपके फोन से आ जाती है. बाय डिफॉल्ट आपको कुछ नहीं करना. जी. जितने बजे फोटो खींचोगे उतने बजे की फोटो आएगी. छप जाएगी. जी तो हर बार ये जो गनमैन ये 6-5 स्टेप करता है, हर बार हर जगह पे फोटो खींच के डालता है. जी. ये आपके सिस्टम में डलेगी. जी. यस, यस. वेरी गुड. नेक्स्ट. घाट साहब थैंक यू. हाँ, मतलब ऐसे ही चलेगा सबका. तो ये जी, समझ जी, जी. समझ में आ गई ये वाली? अरे हाँ, नहीं तो जैसे लोगों ने अपने घर पे, अपने ऑफिस में कोई भी काम करना है, वो सिक्योरिटी वाला जा रहा है, वो क्या बोलते हैं, क्वालिटी वाला चेक कर रहा है, देखना है उसने चेक किया, ठीक से चेक किया, कितने बजे चेक किया, सब चीज़ों की फोटोएं डल जाती हैं और सारा सिस्टम गूगल पे चढ़ जाता है. समझ में आया? हाँ चल गूगल. वेरी गुड. गो बैक टू द मास्टर. वेरी गुड. सो नाउ लेट्स गो बैक ऑन द टॉप. लेट मी हैव अ लुक एट सम. एम्प्लॉय चेक इन चेक आउट कर लो. ये क्या है? गार्ड, ये तुम्हारे लिए बजा रहे हैं ताली. बहुत अच्छे यार, थैंक यू. ये क्या है, एक बार समझा दो मीनू, ये कौन कर रहा है? नमस्कार सर. सर इसमें हमारे जब एम्प्लॉय आते हैं सुबह मॉर्निंग में, तो हम उनका टाइम गेट पे फ़ोटो खींच के अपलोड होता है, खींच के अपलोड हो जाता है. उसको उसमें हम टाइम उसका मैच करते हैं और उसका फ़ोटो लेके देखते हैं किस टाइम वो आया है, इस टाइप. तो हर एम्प्लॉय का हर फोटोग्राफिक employee का photo एविडेंस है कि सब जी. कुछ हो रहा है, कोई गड़बड़ नहीं कर सकता. जी जी. उसका Very टाइम good. टाइप आता है, आउट कब आउट हो रहा है उसका वो भी अपडेट किया जाता है. ओके, इसमें स्टेप्स क्या क्या है? स्टेप 1 जो भी है, स्टेप 2 फ्रिस्क्ड एंड फाउंड. ऐसे इसकी तलाशी वलाशी जो भी लेनी है ली जाती है. सेकंड स्टेप है. उसके आगे उसके तलाशी वही आउट किया जाता है.
जो अगर हाफ छुट्टी लेता हाफ डे तो उसका हाफ डे अपडेट किया जाता है। तो ये सारा का सारा पेरोल जी गूगल शीट पे चढ़ा जी सकते हैं। सर, गूगल शीट से ही सब अपडेट होता है। कितने बजे वो ऑफिस से बाहर निकला, कोई भी एम्प्लॉय वो अपनी फोटो लगा के एक फोटोग्राफिक एविडेंस देगा कि इतने बजे मैं निकला, ताकि ये ना हो कि इसके साथ दोस्ती जारी है तो हाफ डे का फुल डे लग रहा है या टाइम गलत हो रहा है या जो भी हो रहा है। नेक्स्ट, लेट्स गो अप। सर अभी भी एफएमएस और चेकलिस्ट का यही फॉर्मेट है क्या? नहीं Who has to do it? How will it be done? नहीं, वो तो वही है, साइंस नहीं बदल सकती। बेसिक साइंस ऑफ रनिंग द बिजनेस विल नेवर चेंज। The systems may improve, it becomes better, you get WhatsApp integration, email integration, you put artificial intelligence into it, we do all of it. But I'm saying that the basic systems will not change. Okay, next, show us a FMS. वो वाला दिखाओ, जुगाड़ का दिखाए सर आपको? दिखा दो। जुगाड़ वाला दिखाओ। अरे मेरा ड्राइवर भी तो आया बेचारा, इसको भी प्रेजेंट करने दो भाई। ये क्या है? जुगाड़ चेकलिस्ट क्या होती है? सर वो इन्होंने कहा था फोकलिफ्ट खरीदो, मैंने कहा था 70,000 में मोटर बाइक आती हैं, 8,000 में हमने ये क्रिएट कर दिया, इसमें भी 500 kg सामान आ सकता है, तो हमने जुगाड़ बना दिया। 6 साल से चल रही है, तो हमने जुगाड़ का चेकलिस्ट बना दिया। नाम ही जुगाड़ है, so there's no other Indian, no other name I know of it. Guys, everything is in Hindi. It can be in Marathi, in Gujarati, in every language that you wish it. My people don't know English. Nobody knows English in my organization. रामपुर छोटी सी जगह है, यूपी की जगह है, और वहाँ पर आप सोच सकते हो किस क्वालिटी की, मतलब द मैन पावर इज़ नॉट अ वेरी, हाँ मतलब मुश्किल होती है मैन पावर लेकर आना, एक ऑर्गेनाइज प्रोफेशनल सेटअप चलाना, तो इट्स नॉट सो इजी। यस, सो सिस्टम वहीं के बनते हैं जहाँ के हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरे सिस्टम और पूरा ऑटो पायलट कर लिया, और उनके शहर की पॉपुलेशन 35,000 है। 35,000 की पॉपुलेशन है, 35,000 का शहर भी नहीं माना जाता, मतलब वो गांव का एक थोड़ा बड़ा फॉर्म होता है, कस्बा। ओके, तो इसमें ये हर बार जब जब जा रही है, जो जा रही है उसकी रिपोर्टें हैं, ये टाइम स्टैम्प लगी हुई है, ये सब स्टेप्स हैं। जी सर, ये एवरीडे अपडेट होता है, और वंस अ वीक इसको जो HOD हैं वो भी चेक करते हैं कि ये Okay. जितने शीट्स भरी गई हैं वो ठीक हैं, जेन्युइन है या नहीं है। ओके, वेरी नाइस। तो ये सब स्टेप्स हैं इसके, जी सर, लाइट चेकिंग, जुगाड़ क्लीनिंग, सारी चीज़ें इस पे जो दी हुई हैं, ये जो इसको चला रहे हैं जुगाड़ को, वो लड़का फिल करता है। वेरी गुड। नहीं तो क्या होता है, हम कोई भी एक सामान खरीदते हैं, उसके बाद सामान कचड़ा हो जाता है थोड़ी देर बाद। यस, कोई भी सामान खरीदो, स्टाफ को दो, थोड़ी देर बाद वो सामान खराब होता है। ये उन्होंने जुगाड़ बनाई, कितने सालों से चल रही है? ये 5 साल हो गए सर। सेम चल रही है। जी सर, साल हो गए? 5 years हो गए इसको। तो वो सिर्फ इसीलिए चल रही है कि सारे चेक्स हर रोज होते हैं, पूरा साफ करो, पूरा क्लीनिंग करो, उसकी सर्विसिंग कर दो, उसका सारा कर दो, सब कुछ कर दो, तो कोई भी सामान नहीं तो ऐसा यूपी के किसी छोटे शहर में मतलब 6 महीने ना चल सके, दिल्ली में ना चल सके। अरे यस। ओके, नेक्स्ट, लेट्स गो बैक टू द ओरिजिनल शोस। कपिल देव दिखाएं सर। कपिल देव, वो सर हमारे 2 लोग थे, सब लोग उनको यूज करने लगे, तो हमने कहा कि ऑलराउंडर है, हमने चेकलिस्ट बना दिया उनका। अब उनके सारे काम चेकलिस्ट पे ही होते हैं सर। Those 2 people are governed completely by the checklist and the FMS. Okay. We also do our entire payments through FMS only. It's not through the accounts department. Everybody is guided through the checklist, through the FMS. So हम लोग के यहाँ अगर एक भी चीज खरीदी जाती है, कब कहाँ कैसे दिखाओ। पेमेंट करना है, वो सारा इसके थ्रू है। दिखाओ एक कुछ भी सामान खरीदते हो उसकी क्या है एफएमएस? परचेस का। परचेज का दिखा दो, ये परचेज एफएमएस है। This is most brilliant sir, because the whole factory is integrated through this one. इसको जरा वो करो, जूम आउट। हाँ ठीक है, तो इसमें क्या है, आपने एसिड की एक बॉटल खरीदी, क्या बात कर रहे हो, एसिड की बॉटल भी जो खरीदी है सिस्टम पे आती है? हाँ यस सर, मतलब फिनाइल खरीदी तो इस सिस्टम पे चढ़ रही है। एवरीथिंग सर। अगर आप एक झाड़ू खरीद रहे हो इस सिस्टम पे चढ़ रही है। इसका सिस्टम दिखाओ झाड़ू खरीदने का। सर आतिफ मेरा फुल किटिंग इंचार्ज भी है, हम फुल किटिंग के बिना कुछ नहीं करते सर। मैंने 11 महीने में पूरे फैक्ट्री में, आपको पता है दैट न्यू हाउस आई बिल्ट व्हिच इज 10,000 स्क्वायर फीट, फ्रॉम द भूमि पूजन टू द गृह प्रवेश इन 11 months आई डिड इट सर।
11 महीने में पूरा घर बना घर दिया। बना दिया सर मैंने। और कितना बड़ा? 10,000 square feet. वेरी नाइस, Only because of full kitting, sir. वेरी गुड। दिखाइए क्या है फिनाइल खरीदने की जो चेकलिस्ट, ये क्या है इसका? FMS इंडेंट इज अपलोडेड इन गूगल फॉर्म बिफोर 1 PM. बिफोर 1 PM। आगे जाना, स्टेप 2 आप बताओ क्या है ये, जल्दी जल्दी से पढ़ दो। सर स्टेप 2 में वेंडर सर्च करते हैं। अगर वो लोकल कोई भी मटेरियल आता है तो उसे हम 4 घंटे के अंदर वेंडर सर्च करके हमें इंक्वायरी उसमें डालनी। और अगर कोई आउटसाइड से आना है तो उसके लिए हमें 6 आवर्स मिलते हैं सर। ओके, एंड देन लास्ट परचेज उसकी सर्च करते हैं हम कि वो लास्ट टाइम कब आया था और किस रेट में आया था। वेरी गुड। सचिन वो खोलना, वर्क अंडरटेकन अगेंस्ट इंडेंट, ये क्या है? ये क्या है? तो ये इसमें जो ने साइन मार रखे सारे एक फिनाइल का फॉर्म भी भरते हैं इसमें। ये सब Everything, खरीदना sir. था तो स्टोर इंचार्ज का साइन है, इंडेंटर का साइन है जिसने रेज किया, और अप्रूव्ड बाय का साइन है किसने अप्रूव किया। अरे हर परचेज, नहीं तो परचेज पे सारे परचेज कौन देख रहा होता है? मालिक। सारे अप्रूव आप करते हो ना? अरे हाँ कि नहीं? यस। और मुझे एक बड़ा आदमी दिखा दो जो परचेज अप्रूवल कर रहा है। हमारे यहाँ ये हाल है कि ओटीपी पे ओटीपी हम दे रहे हैं, हर ओटीपी मालिक बैठ के खुद ही दे रहा है। सोचो लाला ओटीपी देगा तो धंधा कब करेगा? और पहले ओटीपी आता है, फिर लाला पूछता है ओटीपी किस लिए है, फिर वो समझाता है क्यों, फिर लाला 4 सवाल पूछता है जिसका कोई जवाब नहीं है, वैसे भी कोई फायदा नहीं होता। सारे सवाल जवाब करने के बाद एंड में वो ओटीपी दे ही देता है। अरे यस और नो? 99% ओटीपी आप सारे सवाल जवाब करने के बाद दे ही देते हो। तो सवाल क्यों करते हो जब देना ही है? हाँ जी, इसके बाद अगला स्टेप सर इसके बाद में हमें 48 आवर्स में कोटेशन रिसीव कर उसका अपडेट करना होता है। जो भी उसका रेट फाइनलाइज होता है उसके बाद उसको नेगोशिएशन प्रोसेस में लेके जाते हैं स्टेप 5 में। एंड देन हम उसका जो भी परचेज ऑर्डर होता है उसे अपडेट करके एक डेट्स दे देते हैं कि ये कब मटेरियल आएगा, डिलीवरी डेट देनी होती है हमें। ये अप्रूवल की फोटो बताना जरा, अप्रूवल ऑफ कंपैरेटिव इमेज, ये क्या है? ये कंपैरेटिव बनता है सर। अब किसी आइटम में ऐसा होता है कि वो छोटा है तो सिंगल पार्टी से ही ले लेते हैं, ज़्यादा रेगुलर आइटम्स हमारे चलते रहते हैं तो। और इनकेस अगर मटेरियल अलग अलग जगह से आ रही है तो हम 2-3 पार्टीज लेके उसको कंपैरिजन करते हैं, उसके बाद हम उसको आगे नेगोशिएशन प्रोसेस में लेके जाते हैं। वाह, इसमें लास्ट परचेज प्राइस भी दिखाई हुई है यस सर। कि लास्ट पिछली बार हमने जब दाम ये खरीदा था तो कितने में खरीदा था और 3 पार्टी ने कितना दिया, और ये डॉक्यूमेंट यहाँ स्टोर्ड है। ये नहीं कि बाबा तुम बता दो 3 पार्टी से ले लिया क्या, ये नहीं है। देयर इज नो मैनुअल इंटरवेंशन, एवरीथिंग हैज टू बी ऑन द सिस्टम। बंद करिए जरा, वापस जाइए आगे। देन सर जब भी डिलीवरी डेट आ जाती है उसके बाद सेम डेट पर हमें डिलीवरी करनी होती है उस चीज़ की। उसके बाद में वो मटेरियल गेट पर आता है, उसका इन्वेट क्रिएट होता है, उस इन्वेट की फ़ोटोज़ यहाँ अपडेट हो जाती हैं। दिखाओ, ये जब माल आता है तो इसके इन्वर्ट के ये डॉक्यूमेंट्स हैं। ये हमारे सिक्योरिटी गार्ड के हैंड से इन्वर्ट क्रिएट करा जाता है जब मटेरियल गेट पर आ जाता है। तो ये भी सब फोटो सबकी हर चीज़ की डली हुई है, हर चीज़ की सर। बंद करना, वापस जाना, FMS आगे। इसके बाद ये मटेरियल स्टोर चला जाता है और स्टोर इंचार्ज इस मटेरियल को चेक करके उसका जो भी स्टॉक होता है वो IMS में एंटर करते हैं। आइटम इमेज दिखाओ, फोटो भी खींच के डाल देते हो कि ये Yes, माल आ sir. गया। अरे समझ में आ रहा है? अब मुझे एक बात बताओ कि माल आ गया, पहले PI क्या अप्रूवल है, 3 कोटेशन, उसकी फोटो, उसके बाद गेट में ये फिनाइल है बाय द वे। हाँ, ये क्या है? ये क्या आइटम्स हैं? फिनाइल, झाड़ू, और ये क्या है? मेड इन चाइना लॉक। लॉक, ताला है ये, ताला। ताले अगर आए तो इन्वेंट्री में या आपके जो एडमिन का काम है उसके अंदर जाने से पहले लॉक की फोटो खींच के डालते हैं कि भाई लॉक आ गया, ये फिजिकल लॉक है, ये नहीं कि मैंने हाँ कर दी और घोटाला हो सकता है। नेक्स्ट, सर मटेरियल का नेक्स्ट स्टेप में स्टेप 13 में MQQS और उसकी क्वालिटीज़ अपडेट हो जाती है और देन उस बिल को हम नेक्स्ट स्टेप में जाकर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सबमिट कर देते हैं।
ये प्रोसेस स्टोर के हैंड से होता है, जहाँ तक कि मटेरियल स्टोर में नहीं पहुँचा है उससे पहले का सारा स्टेप परचेज डिपार्टमेंट से होता है। तो ये दोनों परचेज भी इसी में है, इन्वेंट्री भी इसी में, इनवर्ड भी इसी में, गार्ड भी इसी में, पूरा प्रोसेस शुरू से आखिरी तक सारे लोग भर रहे हैं। एंड माइंड यू, सारे लोग कागज पे भर रहे हैं, गूगल शीट में कोई नहीं घुसा रहा, कागज से भर के फोटो खींच के चढ़ा देते हैं बस। अरे समझ में आया? यस, ओके नेक्स्ट। पेमेंट, परचेज पेमेंट की ट्रैकिंग अलग है। ये रिश्ते क्या है? सर रिश्ते हैं जो क्या है मीनू, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हमसे मिलने के लिए आते हैं। नहीं वो तो अतिथि तुम कब जाओगे वो वाला है ना जी। ये रिश्ते क्या? अच्छा रिश्ते जो हमें Licensing का licensing सर। करना होता है, हमने उसका रिश्ता रख दिया है कि किसको ओब्लाइज करना है ये साल में जो भी दिवाली आपके गवर्नमेंट के तो हर चीज का सिस्टम बन सकता है, रिश्ते हैं। ये क्या है? जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हमारे यहाँ विजिट करने आते हैं फैक्ट्री में, पीएफ कमिश्नर ये वो, फायर डिपार्टमेंट, बॉयलर के जो कमिश्नर हैं, वो क्या बोल के जाते हैं उसका हमने एक एफएमएस बताया। दिखाओ। अतिथि तुम कब जाओगे। नहीं वो तो एक अलग है, ये दिखाओ रिश्ते। केजे अच्छा वो दिखाओ, अतिथि तुम कब जाओगे। नहीं, अब मंदिर का भी चेकलिस्ट है। अरे यार डिम्पल को भी तो चांस दो ना बोलने का। हाँ, लेट्स हियर व्हाट द ड्राइवर सर, आवर ड्राइवर्स थिंग इज सो अमेजिंग। I'm going to share something about that. ये क्या है कि ATKJ? ये अतिथि तुम कब जाओगे? अच्छा ये वो लोग हैं जिनको आप चाहते हो कि नहीं, ना, फायर डिपार्टमेंट, यूपी लेबर डिपार्टमेंट, ESIC, म्युनिसिपल डिपार्टमेंट। आगे दिखाओ क्या है ये सर जब यहाँ कंपनी में आते हैं फैक्ट्री में, उसके बाद जो भी पर्सन राइट पर्सन है, जो इंचार्ज हैं, अगर फायर से आए हैं तो जो भी इंचार्ज हैं वो इसको सबमिट करेंगे और उसके बाद फिर वो फ़ोटो भी इसमें खींच के डाल देते हैं कि कौन कौन वहाँ पे प्रेजेंट थे और उन्होंने क्या सजेशन दिया। वेरी नाइस। तो ये सारी रिपोर्ट बनती है, आपके फॉर्मेट्स हैं। जी सर। तो ये सारे फॉर्मेट्स आ गए, फाइल कब क्या कैसे। ओके नेक्स्ट। जी। ये क्या स्टेप 3? GM सर को दिखाना है। ये उनको दिखाना है कि कोई पर्सन आए थे और जो फॉर्म फिल किया वो उनको लास्ट में दिखा देते हैं कि उन्होंने क्या सजेशन दिया है, कि कोई डॉक्यूमेंट्स जमा करना है या कोई रिपोर्ट चाहिए, वो दिखा देते हैं ताकि सारी चीजें टाइम पे हो जाए। हाँ जी, कुछ चीज सर। लेट ना हो। यस जी सर। ओके, व्हाट एल्स? ये विला की क्या है? मंदिर चेकलिस्ट, हॉलीडेज, लिस्ट ऑफ हॉलीडेज, वे ब्रिज, मंदिर की चेकलिस्ट। कपिल देव चेकलिस्ट क्या होता है? कपिल देव चेकलिस्ट में सर 2 हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, वो मल्टीटास्कर हैं, वो कुछ भी काम कर लेते हैं। अच्छा वो कपिल ऑलराउंडर हैं? ऑलराउंडर हैं वो लोग। तो उनका ये होता है कि कभी जैसे उनको ग्रास कटिंग के लिए लगाना है या कभी किसी दूसरे डिपार्टमेंट में लगाना है। कभी यू हैव पीपल जो कि मल्टीटास्कर्स हैं, उनका जी। एक काम नहीं है 50 काम है, उसका वो- भी सिस्टम बनता है। हाँ। डिपेंडिंग ऑन द लेवल, कई सीनियर होते हैं, कई जूनियर होते हैं। सीनियर की अलग बनती है, जूनियर की अलग बनती है। तो एवरी टाइम इनकी फाइटिंग होती थी, कभी कोई डिपार्टमेंट इनको बुला रहा है, कभी कोई। तो हमने इनका एक पहले से प्लान फिक्स कर रहा है कि जिनको भी अगर अपने डिपार्टमेंट में चाहिए उन दोनों को काम करवाने के लिए, तो वो 1 दिन पहले या 2 दिन पहले जैसे भी उनका प्लान होता है वैसे ही वो ये फॉर्म फिल कर देते हैं और ये FMS में आ जाता है। और फिर ये इसमें फ़ोटो भी खींच के डाल देते हैं कि दोनों ने क्या काम किया था उस दिन। वेरी गुड, गो बैक। इंक्वायरी टू ऑर्डर बुकिंग FMS है? जी है सर। ये क्या है? अच्छा मार्केटिंग वाला। हाँ जी, ये क्या है? चलो एक्सप्लेन करो। करो। ये दिसंबर की दिख रही है, नवंबर की जी। खोल के दिखा दो। ओके नेवर माइंड, ये दिखा दो। इसमें क्या होता है? जितने ऑर्डर आए आपके वो सारे इसमें लग जाते हैं। इसमें सर जितने भी हमारे कंपनी के ऑर्डर लिए जाते हैं वो सब इसमें अपडेट कर देते हैं हम लोग, पार्टी वाइज जो भी ऑर्डर मिलते हैं हमें। वेरी गुड, आगे। इसमें और पार्टी वाइज दिखा दी सर। अच्छा ये पार्टी वाइज है। I have a limited production of 120 tons per day. So there are only so many parties that I can give to. ओके So that's why it's not very
ये अलग अलग डैशबोर्ड में है हमारे, इसमें ओके बुक एसओसी कितनी हमारे हमारा कितना माल हमारे यहाँ इस साल इस महीने उठ रहा है। वेरी नाइस। तो नेक्स्ट, मेरा क्वालिटी इंचार्ज भी यहाँ पे आया हुआ है, वो दिखा सकता है कुछ। दिखाओ भैया अपना क्वालिटी का दिखा दो, क्या सिस्टम बन जाता है। वल्फर क्या टेस्ट? क्वालिटी का सिस्टम है। जी मैं कुशवा जी दिखाइए ना। क्वालिटी का सिस्टम बहुत लोग पूछते हैं कि क्वालिटी कैसे कर सकते हैं। यस, खोलो जरा इसको, थोड़ा और जूम इन करो। Sir, can't believe we actually sat and made all of this. So many times I asked मीनू किसने बनाया? She said, सर आप ही ने बनाया। सर 3-4 साल हो गए देखे हुए यार, मैं तो देखा ही नहीं हूँ। सर आई प्रॉमिस यू, मैंने पिछले 4-5 सालों में एक भी चीज परचेज का पेमेंट अप्रूव नहीं किया है, सब ऑटोमेटिकली होता है। आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग। वेरी हेयर नाइस। पिन से लेके कैंडल फिल्टर तक एवरीथिंग इज, कैंडल फिल्टर इज अ इक्विपमेंट 2.5-3 लाख रुपए का इक्विपमेंट है। तो हेयर पिन से लेके 2.5-3 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक का इक्विपमेंट। I don't go into the I don't need to go into the details. Right. 10 people have discussed it and then discussed whether this should be done or not, and it's all on the FMS. राइट, सो लेट्स मूव अहेड जल्दी से। सर ये मेरा सल्फर एफएमएस है, रॉ मटेरियल जो मेरे यहाँ यूज होता है। तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ ट्रक आता है सल्फर का, उसे सिक्योरिटी, हमारा सिक्योरिटी सुपरवाइजर उसे सबसे पहले इन्वर्ट इसको बनाते हैं, इसका इन्वर्ट को। नहीं वो सब ठीक है, क्वालिटी चेक का कहाँ से पैरामीटर्स? क्वालिटी का बताओ ना कुशवा। आगे आगे क्वालिटी का ये सब छोड़ दो। ये है ना, और आप फॉर्मेट देख रहे हो, ये फॉर्मेट वही है जो मैंने आपको बताया, हु, हाउ, व्हाट, व्हेन। ये इतना जल्दी मत चलो, जैसा बोल रहे करो ना। क्वालिटी दिखा दो सर बस। ये क्वालिटी हमारा इसमें S+ आर्गेनिक और मॉइस्चर कंटेंट दोनों ही इसका चेक होता है सर। कैसे पता लगता है क्वालिटी ठीक है? सर उसका पहले तो सैंपल लिया जाता है ट्रक से, 5 या 10 स्पॉट से। उसको लेने के बाद उसको लैब में चेक किया जाता है, उसके सारे प्रोसेस जो होते हैं। पिक्चर भी तो लेते हो ना सल्फर का, वो कहाँ है? वो तो स्टार्टिंग में पेमेंट पे होता है सर। ये ट्रक का एक्चुअली जब ट्रक पेमेंट पे आता है तो सब इसका पहले पिक्चर लेते हैं, इसका पहले वहीं पर फिजिकल चेक करते हैं कि ये माल हमारा सही है नहीं है। तुम वो ड्राइवर वाला भी दिखाओ ना जो चेक करते हो, एक है ना कुछ। चलो, ओके, आई थिंक वी हैव गॉट एन आइडिया नाउ। हाउ मेनी ऑफ दीज सिस्टम्स डू यू हैव रनिंग? एक इसको बंद कर दो 1 मिनट। सर मी या आई डोंट नो मीनू कितने सिस्टम्स है ऐसे रनिंग? 97 के अराउंड। ओके गाइस, लेट्स बहुत इसको कैन वी वाइंड दिस अप? Yeah. सो गाइस, आपको सबको समझ में आ गया कि हर चीज का एक सिस्टम बन सकता है। एक व्हीकल का दिखा दें सर, हाँ, व्हीकल का दिखा दो। गेस्ट सारे बोर हो रहे हैं मेरे। छोड़ दो इसको रहने दो। अब सबको समझ में आ गया कैसे करना है। फैक्ट्री व्हीकल रनिंग, ये वो सब कुछ, कैसे फैक्ट्री की कौन सा व्हीकल चल रहा है, नहीं चल रहा, कितने किलोमीटर, जैसे ट्रांसपोर्ट वाले। Let's hear my driver for a second on the vehicle checklist. So you know it's very important because एक मिनट these बताओ। guys are not educated. If they can do it, why can't we? You know. आओ डिंपल, जल्दी से दिखाओ vehicle Thank वाला। मैं आज अपना ढोल पीटने नहीं आया हूँ, मैं आप लोगों को बताया हूँ कि आप कैसे ढोल बन सकते हो खुद में। ढोल है वो, उसको ठीक होना है। सर सुपर ढोल बनना है, पीटने वाला ढोल। अच्छा, दिखाने वैसा वाला वाला। नहीं। ये हम जो कहते हैं गाड़ी लेकर निकलते हैं तो हम उसमें गूगल फॉर्म पर फिल करते हैं कि हमें सिविल लाइन जाना। अगर सिविल लाइन से अगर जाते हैं तो अधिकारी अगर कोई बोलता है कि हमें अभी सिटी भी जाना है तो हम उसको लौटते पे एडिशनल में डालते हैं। और बाकी हम अपनी जो रीडिंग होती है उस टाइम वापसी में वो हम जो है गूगल फॉर्म पे फिल करते हैं। उस पर किलोमीटर भी दिख जाता है और हमें ये भी पता रहता है कि कहाँ पे घूम के आए हैं। अधिकारी को सबको पता रहता है, इसमें से एवरेज वगैरह सब एवरेज वगैरह सब। जैसी गाड़ी को अगर मान लो This तेल is a physical जैसी form हम that we fill. ऑयल फिल This is कराते uploaded हैं by तो someone. तुरंत किलोमीटर निकल के आ जाते हैं कि कितने किलोमीटर चल के आइए। It's an amazing system, sir. और अगर कुछ, 1 मिनट, अगर टायर पंचर हो जाए, टायर खराब हो, कुछ भी खराब हो जाए तो टायर पर जो उसका कहते हैं स्टप नहीं होती है, स्टप नहीं लगाया, बाकी कहते हैं नहीं Google- यार, वो सर वो नहीं पूछ रहे। अगर कुछ बदलना हो, पैसे लग रहे हो, तो बदलना हो तो उसके लिए कहते हैं चेकलिस्ट है कि उसको हम कहते हैं सही और गलत बताते हैं। चेकलिस्ट डालते हैं सुबह को, उसको अपडेट करते हैं। सुबह मॉर्निंग में आने के बाद गाड़ी चेक करते हैं पूरी। ओके, वेरी गुड। ओके, सो लेट्स शट दिस डाउन। थैंक Thank यू। you. Thank you. Awesome guys. Thank you. Thank you very much.
सो गाइस, आपको ये समझ में आया कि कैसे, आई जस्ट वॉन्ट यू टू गेट अ सेंस, कैसे आपके सबसे, अगर आपको लगता है, देखो बढ़िया स्टाफ और एजुकेटेड स्टाफ और जो वेल क्वालिफाइड स्टाफ है उनसे तो काम हो ही जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि एट बॉटम लेवल, बिल्कुल बॉटम लेवल के स्टाफ भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड दिस नाउ? अरे, डू यू अंडरस्टैंड दिस? वेरी गुड। ओके, यस अंशुमन। So, thank you everyone. Now let me explain a little bit कि इस कोर्स के इम्प्लीमेंटेशन ने कैसे मेरे लोगों को और मुझे इम्पैक्ट किया। मेरा 30 साल पुराना माली बाबूराम जी, ये जो बीच में कुर्ता पजामा में खड़े हैं, उन्होंने मेरा कल्चर स्टेटमेंट फॉर्म किया, गर्व से आगे बढ़ो, विच इज़ एवरीवेयर इन माई फैक्ट्री। All the people in the organization have become one. All the departments are integrated. Everybody, including my senior staff, is now coming on time. सारे लोग बहुत बिजी हैं, हर आदमी को अपना काम पता है और हर काम के पीछे आदमी है। तो कोई भी चीज़ हमारे यहाँ पे इमरजेंसी नहीं है, कोई भी चीज़ यहाँ पे सरप्राइज नहीं है मेरे फैक्ट्री में। मेरी ये मीनू पिछले 12 EM से इसका कोई भी स्कोर नहीं आया है। She has got a EA for herself, and when Meenu just went to her hometown Chhattisgarh, the IG over there caught her and said, यार ये ज़रा दिखाना तुम्हारा गूगल ड्राइव बड़ा इंटरेस्टिंग है। और उसने जाके वहाँ के 5 डिस्ट्रिक्ट्स में फ्लीट मैनेजमेंट MIS, फ्लीट मैनेजमेंट FMS अपना बनाया और उनका पूरा फ्लीट मैनेजमेंट करके ये सारे SPs बैठे वहाँ के, they are all IPS officers, and she went and gave them a speech over there. And they did a pilot project. They did a pilot project for 5 of the states over there with this. I mean, हमारे अपने लोग इतने ज़्यादा होशियार हो गए हैं। और ये ना, मैं अपने लोगों का ट्रम्पेट नहीं ब्लो कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के साथ ये एक सुपर सक्सेसफुल कोर्स हो सकता है ज़िंदगी के हर पहलू में, आपके घर को चलाने में, आपके धंधे को चलाने में, आपके लोगों के भी बिजनेसेस चलाने में। इट्स एन अमेजिंग कोर्स। Planning is not anymore for the week or the month. It is for a minimum of 60 days, whether it is production, whether it is raw material, or whether it is my marketing. And I spend only 60 minutes a week in doing this. वो भी तोड़ के, जैसे वेडनेसडे को 15 मिनट मिल दिया, फ्राइडे को 15 मिनट मिल दिया, ऐसे करके, क्योंकि 15 मिनट से ज़्यादा का काम ही नहीं है। पहले क्या होता था, हम इंफॉर्मेशन के लिए मांगते थे, लोग इधर दौड़ रहे हैं, उधर दौड़ रहे हैं, कोई इधर से ला रहा है, कोई उधर से ला रहा है। अभी एवरीथिंग इज ऑन गूगल ड्राइव। आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग, दे डोंट नीड टू डू एनीथिंग, नोबडी कैन एस्केप, बिकॉज एवरीथिंग इज डेटा। डेटा इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज डेटा। सो देयर इज नो प्रॉब्लम ओनली। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू विल अप्रिशिएट 7 people are here from my factory. मुझे and they are representing 80 more people who are over there. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन रुक रहा है, कौन जा रहा है। पहले हर रोज आदमी अपना वाइट रंग का एक यहाँ पे ना स्लिप लगा के आता था फैक्ट्री में। अब मैं 80 ऐसे स्लिप रखता हूँ, कभी भी वाइट रंग का स्लिप निकाल के कह सकता हूँ बगर ऑफ, आई डोंट नीड यू। एंड दैट्स द काइंड ऑफ पावर आई हैव। रामपुर से मैं नहीं हूँ, मुझसे रामपुर है। आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट। I am the driving force. How many of us can say that for our organizations? I am saying it in front of my staff. I am not scared of anybody. इतने गट्स कहाँ से आए बॉस? क्योंकि डेटा है मेरे पास हर एक चीज़ का कंट्रोल है। मैं और एक 12,000 रुपए के आदमी को लाके कह सकता हूँ, भाई 15 दिन के लिए ना मेरे IMS मेरे स्टोर्स को संभाल ले, कुछ नहीं चाहिए। एक 12वीं पास भी मेरे पूरे फैक्ट्री को चला सकता है। अब मेरा प्रोडक्शन हेड लास्ट अक्टूबर क्विट कर गया। उसके बाद वो हैदराबाद में बैठे, मैंने उनसे फ़ोन पे बात किया, मैंने कहा सर हेल्प कर दो। ही सेड नो प्रॉब्लम, आई हैव सम फिजिकल प्रॉब्लम, आई कांट स्टे इन रामपुर। मैंने कहा नो प्रॉब्लम। पूरा प्रोडक्शन, पूरा परचेज, पूरा HR, पूरा का पूरा डिस्पैचेस वो गूगल ड्राइव पे वहाँ से बैठ के करते हैं और हर EM में उनका स्कोर आता है। और मेरा जो फाइनेंस हेड है वो पूरा का पूरा फैक्ट्री संभाल रहा है। आप सोचिए 1000 डिग्री में सल्फर जलता है, 360 डिग्री का सुपर हीटेड स्टीम निकलता है, 26 kg का मेरा बॉयलर है और उसके बनता क्या है, तेजाब, और वो मैं बना रहा हूं विदाउट प्रोडक्शन हेड। एम आई राइट गाइस? अपने पास कौन है? सीताराम जी हैं,
कोई है ही नहीं, नागराजू जी है ही नहीं, राइट? एंड वी आर मैनेजिंग एवरीथिंग आवरसेल्व्स. इट्स एन अमेजिंग थिंग. मेरा पूरा स्टाफ कोरोना से इफेक्टेड नहीं हुआ क्योंकि जून 2019 में ही हमने सारा चीज़ ऑनलाइन कर लिया था. तो घर बैठ के वैसे ही काम कर रहे थे, ऑफिसेज में ही बैठ के काम कर रहे थे, तो फिर घर में बैठ के काम करने लगे सारे लोग. मैंने दिल्ली का ऑफिस गिव अप कर दिया 2018 अक्टूबर में. फालतू में तामझाम था. आई यूज टू ओनली फील लाइक खैतान साहब ओवर देयर. अभी 20x10 का कमरा है मेरे घर में, पिछले 6 साल से वहाँ बैठ रहा हूँ. अभी हमने 10,000 स्क्वायर फीट का एक 8,000 10,000 स्क्वायर फीट का एक ऑफिस लिया है नोएडा में. आई हैड टू लिटरली बेग ऑफ माई ब्रदर नॉट टू पुट अप अ चेंबर फॉर मी. मैं 10 या 12 बार तो ऑफिस गया हूँ पिछले 6 सालों में. ज़रूरत ही नहीं है, मुझसे नहीं पहना जाता ये सब. मैं ट्रैक पैंट्स में काम करता हूँ, कोई ज़रूरत ही नहीं है ऑफिस जाने की. रामपुर जाता हूँ तो वहाँ पे ऑफिस है, वहाँ से काम कर लेता हूँ. आई शिफ्टेड एवरीथिंग टू रामपुर. There is no need for an office if you are doing this because everything is data is in my control. So आप ये कह रहे हो कि कोई भी ऑफिस रिमोटली चलाया जा सकता है? सर आप नहीं चलाते हैं, आप तो ऑफिस में ही नहीं रहते हैं. So we have had people, like I told you, who have migrated from India to countries outside. और वो बाहर बैठे बैठे विदेश में अपना पूरा इंडिया का ऑपरेशन चला रहे हैं. बिकॉज अगर 1 डे वीक में ही चलाना है तो कहीं से भी चला लो. लोग ऐसे हैं जिन्होंने माइग्रेट कर लिया, दे आर सिटिंग ऑन टॉप ऑफ अ हिल समवेयर, और वहाँ बैठे बैठे उनका फार्म हाउस है और वहीं से बैठे बैठे पूरा करते हैं. कहते हैं दिल्ली में हम नहीं आ पाते, और वो सिर्फ तभी आते हैं जैसे कोई प्रॉपर्टी की डील हो या कुछ ऐसी चीज़ हो जहाँ उनके सिग्नेचर फिजिकल चाहिए, फिजिकल सिग्नेचर चाहिए. अदरवाइज आते ही नहीं. एंड दे माइग्रेटेड देयर फैमिलीज देयर. सो यू डोंट हैव टू बी इन योर ऑफिस टू रन योर ऑफिस. हमारे कुछ लोग हैं जिनकी फैक्ट्रीज हैं बाहर, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं. कहाँ है आपके इंडस्ट्रियल एरिया है ना आसपास? कुंडली नहीं, कुंडली नहीं, दूर है कोई और. हाँ, तो वो वहाँ पर उनके इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं. पहले वो हफ्ते में एक बार जाते थे, फैक्ट्रियाँ जानी पड़ती थी. एक बार जाते थे, 2 दिन रहते थे, वापस आते थे. अब वो उनकी फैक्ट्री, वो कहते हैं हम 3-3 6-6 महीने फैक्ट्री नहीं जाते. फैक्ट्री के लोगों को अगर कुछ समझना होता है कि क्या हो रहा है, तो फैक्ट्री का हेड, HOD फैक्ट्री का, दिल्ली ऑफिस फ़ोन करके PC से पूछता है, पूछता है कि ये बता दे मेरी फैक्ट्री में क्या हो रहा है, ये डेटा दे दे. क्योंकि डेटा सारा सेंटर कॉर्पोरेट हेड ऑफिस में है. और अधिकतर लोग थोड़ी देर बाद क्या करते हैं, अपना कॉर्पोरेट ऑफिस अपने घर के वॉकिंग डिस्टेंस पे रख लेते हैं. घर के वॉकिंग डिस्टेंस पे 2 बेडरूम का कोई छोटा सा एक वो ले लेते हैं, या छोटा सा एक ऑफिस ले लेते हैं, और वहाँ ऑफिस है, कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर है, और ऑपरेशंस ऑल इंडिया है. कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ट्रांसपोर्टर्स हैं जिनका ऑफिस ऑल इंडिया है, मगर ऑफिस में होने की कोई ज़रूरत नहीं. जिनके 50-50 शोरूम है, 60-60 शोरूम है, और वो सारे शोरूम कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर से चलते हैं. चाहे आप CCTV लगा लो, चाहे आप खुद बैठ जाओ. आप लोगों ने CCTV लगाए हैं? यस. उससे कोई फ़र्क पड़ा? अरे पड़ा क्या? आप ऑफिस में ही बैठे हो? यस. उससे कोई फ़र्क पड़ा? नहीं. ये सिस्टम अगर लग के ऑफिस से फ़र्क पड़ जाता है, लोग CCTV लगा के अपने सामने स्क्रीन देख रहे हैं, जैसे कि उसको पता लग रहा है कि हो क्या रहा है. जो हो रहा है वो डेटा बताता है. डेटा इज़ दी ओनली ट्रूथ. और ये डेटा देखने की भी ज़रूरत नहीं, इनकी MIS शीट नहीं देखी, नहीं तो MIS में सब आ जाता है. फाइनल वर्क नॉट डन ऑन टाइम, क्वालिटी नॉट adhered टू, कॉस्ट नॉट adhered टू, एवरीथिंग. सॉरी अंशुमन, कैरी ऑन. नो सर, यहाँ रजनीश ग्रोवर बैठा है, कुछ काम वाम नहीं करता. 5 माले की साड़ी की दुकान चांदनी चौक में, इतना बड़ा इंडस्ट्री चलाता है गारमेंट का. मुझसे 2 दिन पहले पूछ रहा था, यार मैं बोर हो रहा हूँ, कोई कोर्स बता दे. और ये हॉलीडेज ऑल द टाइम, इज जस्ट हैविंग अ ब्लास्ट जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस दैट यू टॉट हिम. सर हम बच्चे हैं सर, ये बाप है. सो ऑन द पर्सनल फ्रंट, अब मैं थोड़ा सा अपने बारे बता दूँ. बहुत लंबा खींच लिया मैंने सर. I have had innumerable vacations over the past 6 years. I go for a minimum vacation of 4 to 10 days. In fact, ये जो मैं आज स्पीच दे रहा हूँ मुझे कल देना था, बट कल मैं फिर वेकेशन के लिए जा रहा हूँ. अभी मैं अलमाटी से आया हूँ 2 हफ्ते पहले, उसके 1 हफ्ते पहले मैं कोसामुई में था, कल फिर बैंकॉक जा रहा हूँ. It's getting to be a pain because I have overcommitted for vacations now. And this is not my case only. मेरा भाई भी ऐसा है, overcommitted for vacations.
I mean, I can't tell you what happens. सर भी बहुत वेकेशन लेते हैं. I mean, I can't even tell you what this course does to you. यार मैं कह रहा हूँ डबलिंग प्रॉफिट्स ये तो धंधे की बात है ना. जिंदगी बदल जाती है. मैं पिछले 6 सालों में एक भी दिन अपना वर्कआउट नहीं मिस किया हूँ. I love my workout. I have also been inducted into EO Gurgaon, which is a very prestigious organization, and my younger brother has been inducted into EO Delhi in 2022. मैंने 2000 से ऊपर स्टूडेंट्स को मैनिफेस्टेशन सिखाया है पिछले 5-6 सालों में, और 300 स्कूल के टीचरों को एंड ऑल दैट, यू नो, ग्रेट फन. एक मैंने कोर्स चालू किया था इन्हीं लोगों के लिए, नोन एज कॉफ़ी विद अंशुमन, बिकॉज ऑब्वियसली माई पीपल कैन नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव कोचेज, दे डोंट हैव द एक्सपोजर आई हैव. तो मैं इनसे सीख के अपने लोगों के लिए एक कोर्स चालू किया था नोन एज कॉफ़ी विद अंशुमन. ग्रेट फन. आई हैव ऑल्सो बिकम अ होलिस्टिक लाइफ कोच. एलन कोहन साहब हैं जिन्होंने चिकन सूप फॉर माई सोल लिखा था. दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट कोर्सेज इन द वर्ल्ड, अ कोर्स इन मिरेकल्स. मैं इसका भी टीचर हूँ, एंड आई हैव डन लाइफ कोचिंग ट्वाइस विद एलन कोहन. सो आई एम अ सर्टिफाइड होलिस्टिक लाइफ कोच. आई ऑल्सो हैव माई ओन स्टूडेंट्स. I have also become a full-time options trader, which has become a parallel business for my family. And of course, मैं कोई भी कोर्स में जाता हूँ तो सारे टीचर मुझे बुला के बोलते हैं, अंशु एक बार आ जा यार, हमारे लिए टेस्टिमोनियल दे दे. मतलब आप खुद सोचिए कि दिस वंस एस्पायरिंग गोल्फर who only wanted to party, आज आप जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन के सामने और बिजनेस लेडीज के सामने बैठ के एक बिजनेस का भाषण दे रहे हैं, और आप लोग इतने रैप्ट अटेंशन से सुन रहे हैं. इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है इस कोर्स के चेंज का? सीरियसली गाइस, मैं ना सर एक महा हीरो हूं. मैं हर सुबह उठ के अपने आप को शीशे में बोलता हूं, अंशुमन यू आर अ ग्रेट गाय. हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली वेक अप एंड डू दैट? इनफैक्ट जब हम कोई बोलता है ना यार तू ग्रेट आदमी, हम बोलते हैं नहीं सर हम ग्रेट नहीं है, आप ग्रेट है. सॉरी बॉस, 10 बार मैनिफेस्टेशन का कोर्स सीखा हूँ, अब जाके लगता है कि सुपर हीरो हूँ मैं. एंड दिस इज व्हाट ईच ऑफ यू आर गोइंग टू फील लाइक. हमारे बीच में आज मिस्टर रविदीप सिंह चहर हैं, who is a senior IAS officer. Ravi, thanks for coming today, yaar. He is the Joint Resident Commissioner cum IG Prisons, Government of Pondicherry. And he was asking me, Anshu, and Ekta is also here, his wife. And he was asking me, Anshu, तू इतनी पार्टी करता है, इतनी हॉलीडेज करता है, कोचिंग देता है, धंधा भी अच्छे से चलाता है, फैमिली के साथ रहता है, तू कर कैसे लेता है यार? मैंने कहा एक बार आके तो देख ले उस इंसान का कोर्स, और मेरी भी तो कहानी सुन, क्योंकि जब भी मैं रवि भाई से मिलता हूँ वो मुझे अपनी कहानी सुनाते हैं कि हाउ ही वाज फ्रॉम द आर्मी, ही इज बीन टू इन द होटल इंडस्ट्री, and then how he became an IAS officer. 1,000 people came to greet him in Agra that year when he got off the train. I mean, his stories are mind-blowing, and today I have a chance of telling him my story also. It's really an honor that you're here, Ravi. Thanks a ton, you know, for being here today. And he's really my party friend and awesome guy, he and Ekta both. I also have my personal coach, Mr. Vivek Harbhajanka over here. Vivek sir, thanks a lot for being here today. And you've really turned my life around, sir. Thanks a lot. And I got to know him through Gaurav Malhotra, जो मेरा BCI का दोस्त है, जो उस फोटो में था. ही गौरव एंड विशाल मल्होत्रा 2 भाई हैं, तो गौरव ने मुझे सर से इंट्रोड्यूस कराया. एंड Vivek Saab has really changed my whole life around, so thanks for being here. So from becoming the black sheep of the family, I'm now revered with a lot of honor and respect wherever I go. ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली सुना है, सब बताया क्या होता है? सर आप ही बता. काला भैंस, मुझे नहीं पता क्या होता है. ब्लैक शीप वैसा आपको तो नहीं. वैसी हिंदी नहीं आती है. नहीं मेरे को नहीं आती. मैं कह रहा हूँ, आई एम सेइंग कि आपकी लाइफस्टाइल पहले, इन्होंने बताया अपनी लाइफस्टाइल पहले क्या होती थी क्या? फोटो में दिखाया सर. ठीक है, सॉरी, आई डिडंट गेट दैट. ओके, टेल मी, कैरी ऑन, सॉरी. So from becoming that, I have become this. मेरे पापा यहीं पे हैं आज, and you know, it's I'll just say this, that I stay with my parents, and 3 हफ्ते तक मैं मम्मी पापा से नहीं मिलता था, सेम घर में रह के, because I was such a rebel. Because when you're spiraling downwards और कोई कुछ बोलता है तो और spiral downward करते हैं. I was such a rebel, and आज मैं अपने पेरेंट्स का सबसे बिगेस्ट कॉन्फिडेंट बन गया हूँ, और वो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स बन गए. It's really amazing. And you know, at the end of this whole charade, you only realize that जो फैमिली से इज्जत मिलती है ना, माँ बाप और भाई से,
वो एक तरफ और सारी दुनिया एक तरफ। मेरा छोटा भाई मेरी इतनी इज्जत करता है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और आज जो पापा यहाँ पे आए हैं, ही इज़ नॉट अ स्मॉल गाय, हिज नेम इज़ मिस्टर गंगेश खैतान, हिज ओल्डर ब्रदर इज़ डॉक्टर ललित खैतान हु ओन्स रैडिको खैतान, वो मेरे ओन ताऊ जी हैं। तो इन लोगों को, एंड माई फादर इज इन द लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इज कमिंग इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑल्सो फॉर गोल्फ। सो इन लोगों को इम्प्रेस करना, मतलब असली मारवाड़ी है, हमको भी पैसा देते तो ब्याज ले लेते हैं, वो अलग बात है कि सभी चीज़ ये करते हैं मेरे लिए, बट असली में मारवाड़ी है। और इन लोग को इम्प्रेस करना ईजी नहीं है, ये लल्लो चप्पो वाले पापा नहीं है। सो बिकॉज ही इज अ सुपर अचीवर, सो इफ ही इज ओवर हियर, एवरीथिंग दैट आई एम सेइंग इज 100% एक्यूरेट, इट इज़ 100% ट्रू। और जैसे वो कहते हैं ना कोर्ट ऑफ लॉ में कि भागवत गीता को छू के कहो सच है या गलत है, पापा यहाँ पे मेरे भागवत गीता है आज। मैं इसलिए इनको स्पेशली इनवाइट किया हूँ कि आइए पापा, सो दैट आप लोग को ये ना लगे कि मैं कोई भी चीज़ पेल रहा हूँ। सर ऑलराइट, so the business results, I'll quickly show you the business results. I never worked at the business results, this was just a byproduct. Sachin, just show the business results. Forget this, show the business results, we have to hurry up now. These are the business results which I never gave a damn about because I only worked towards implementation of this course. Sulfuric acid में मैं क्या business result दे आऊँगा यार? Sulfuric acid एक commodity है, 5 रुपए केजी पे सल्फ्यूरिक एसिड बिकता है, 20 रुपए केजी में पानी बिकता है। 3 नए प्लांट्स मेरे 100 किलोमीटर के विसिनिटी पे खुल गए। मैंने सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन किया इस कोर्स का और कुछ भी नहीं किया, और ये बिजनेस रिजल्ट्स अपने आप ही आ गए। मेरी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, सो इट्स ऑल अवेलेबल वेर एवर यू वॉन्ट टू डू इट। फ्रेंड्स, आई एम जस्ट हेयर टू टेल यू, डू दिस कोर्स विथ योर आईज शट। ये कोर्स भागवत गीता है इंडियन बिजनेसेस का, और हम सब एंटरप्रेन्योर्स को, मुझे पता है ये लगता है कि हम जो धंधा कर रहे हैं इससे अच्छा साला हम नौकरी कर लेते हैं यार हम, क्योंकि हम अपने मैनेजर से लेके अपने पियोन तक का सारा काम हम ही कर रहे हैं। एटलीस्ट वो अपने हॉलीडेज तो एंजॉय करते हैं, हम कुछ भी नहीं एंजॉय कर रहे हैं लाइफ में। इट्स नॉट जस्ट योर बिजनेस, इट्स हु यू विल चेंज completely as a human being. Lastly, I'll just leave by saying that रणबीर सिंह ने कहा था दिल धड़कने दो पिक्चर में कि पापा आप मेरे लाइफ बोट हैं। राहुल जी तो वेदांत और मेरे लाइफ बोट हैं ही, बट अब मम्मी पापा भी बोलने लगे हैं कि राहुल जी आप सिर्फ लाइफ बोट नहीं है, हमारे फैमिली का पूरा शिप है, बिकॉज ही हैज मैनेज टू सेव आवर होल फैमिली बाय चेंजिंग वेदांत इन माई डायरेक्शन। सर, कैन आई जस्ट एंड with my greatest tool, which was my people, and how much fun we have had, the parties we've had over the last 5 years. We'll just end with that, if you can just put it on. Just a small video. Ravi, आप इधर आ जाओ ना, then you can see the video. Sir, आप भी, you can see from there? Cool. जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू हैं, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी रात भी है, सवेरा भी है। जिंदगी रात भी है, सवेरा भी है। जिंदगी है सफर और बसेरा भी है। जिंदगी है सफर और बसेरा भी है।
भी जैसे एक मीत है, जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की रीत है, हार के बाद ही जीत है, जिंदगी की रीत है, हार के बाद ही जीत है। Guys, come on stage. Rampur wale, Papa, please come on stage. Quickly, come quickly. जल्दी जल्दी आ जाओ फटाफट। विराज एक फोटो खींच ले सबकी जल्दी। आओ आओ। Very nice. Can we have a round of applause for everybody? Thank you so much. Thank you so much. Rampuria. Thank you, sir. Really nice. Thank you so much, Anshuman. Thank you so much for sharing. Thank you, thank you. Really nice.